হোজাই জিলাৰ ভেলেউগুৰি খকনজুৰি নামঘৰ প্ৰাংগণত চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন। সেৱা ভাৰতী পূৰ্বাঞ্চল আৰু নেশ্যনেল মেডিকোজ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগতে সেৱা ভাৰতী গুজৰাটৰ সহযোগত চিকিৎসা শিবিৰটিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে ২২ সংখ্যক ধন্বন্তৰী সেৱা যাত্ৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি উক্ত চিকিৎসা শিবিৰটিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত চিকিৎসা শিবিৰত কৰ্কট ৰোগৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয়। অজিত সতনামীৰ ৰিপৰ্ট এনি এক্সপ্ৰেছ। আমি সেৱা ভাৰতীৰ পৰা আহিছোঁ এনএমৰ আণ্ডাৰত। ইয়াতে আমি প্ৰায় 280জনমান ডক্টৰ আমাৰ অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্পৰ্শকাতৰ যিবিলাক অঞ্চল হয় য'ত নেকি স্বাস্থ্যৰ ইমান এটা এৱাৰনেছ নাই, সিহঁতি মানে হস্পিটেল ইমান উপলব্ধ নহয় সহজতে, সেইবিলাক জেগাত আমি গৈছোঁ। গৈ কেনে এটা হেল্থ কেম্পৰ আয়োজন কৰিছোঁ। যিমান সম্ভৱ হয় আমি সিমান মানুহক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰখা, লগতে যিবিলাক সাধাৰণতে হোৱা যিবিলাক বেমাৰ যিবিলাক আমি ঘৰতে প্ৰতিশোধ কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক বেমাৰৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক সকলোকে যিমান পাৰোঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে কাহ, চৰ্দি, ডায়েৰিয়া এইবিলাক যিবিলাক মানে সকলোৰে সাধাৰণতে হৈয়ে থাকে, সেইবিলাকৰ আমি মেডিচিন আনিছোঁ বা সিহঁতক আমি কাউন্সিল কৰিছোঁ। লগতে আজি যিহেতু কেঞ্চাৰ দিৱস হয়, সেইকাৰণে আমি মহিলাসকলক বিশেষকৈ আমি ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ আমি আৰ্লি স্ক্ৰিনিং কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, ঘৰতে বহি কেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ যে আমাৰ কিবা হৈ আছে নেকি, আমাৰ শৰীৰটোত কি হৈ আছে, বা কেনেকৈ আমি মানে সোনকালে আমি স্ক্ৰিনিং কৰিব পাৰোঁ, আমি তাৰ এটা বৈঠক বহাইছোঁ। আমি তেওঁলোকক বুজাইছোঁ কেনেকৈ এক্সামাইন কৰিব লাগে নিজৰ শৰীৰটো আৰু কেনেকৈ নিজৰ ঘৰতে পোৱা বস্তুবিলাকেৰে নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ যত্ন ল'ব লাগে। তেনেকৈ আমি প্ৰায় বৰ্তমানলৈকে 150জনমান গাঁৱৰ মানুহক আমি চোৱা চিতা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো মানে পঢ়িবলৈ এনকাৰেজ কৰিছোঁ। হেল্থ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কৈছোঁ। আৰু যিবিলাক বয়সস্থ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খজুৱতি হওক, ভৰিৰ বেমাৰ হওক, বিষ হওক, সেইবিলাকৰ কাৰণে ওচৰত যিবিলাক PHC আছে, CHC আছে, সেইবিলাকত গৈ কেনে তেখেতৰ ব্লাড টেষ্ট কিবাকিবি এইবিলাক কৰিবলৈ আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ লেট ষ্টেজলৈ যাতে গৈ নাপায়। তেনেকৈ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনলৈকে আমি আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। अभी हम RML दिल्ली से आए हैं। कैंप के तहत NMO का कैंप है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने मैक्सिमम एरियाज़ पॉसिबल हैं हम वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एकदम रूरल एरिया में जाके हमारा जहाँ पे सबसे कम मेडिकल हेल्प पहुँचता है, हमारा उद्देश्य कि हम वहाँ तक पहुँचें। इसलिए एकदम रूरल एरिया में जहाँ लोगों को हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, उसको कंटिन्यू कैसे करना होता है, मैनेज कैसे करना होता है, कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोकना होता है, ये सारी चीज़ें उनको आइडिया भी नहीं होता। हमारा टारगेट है कि हम वो सिखाएं। ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कभी कभी ये रहता है ट्रेनिंग और पेशेंट को सिखाना, सो दैट वो बाद में अगर खुद से बीमार पड़ जाए तो कैसे हैंडल करना है, वो हमारा टारगेट है। तो हम साथ में स्क्रीन एंड ट्रीट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही पेशेंट को समझा भी रहे हैं साथ में। तो इस पूरे प्रोग्राम का जो ये धन्वंतरी सेवा योजना है NMO के तहत, इसका उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए उनकी हेल्थ के लिए। बहुत बार लोगों को मन में डर होता है या बहुत बार लोग इग्नोर कर देते हैं, और जब वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास हेल्प लिया आता है, तो उस टाइम हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो हमारा टारगेट ये है कि अब अर्ली स्क्रीन करें जल्दी लोअर स्टेज पे, और फिर उसका ट्रीटमेंट करें, ये मेन इसका टारगेट है। और सुबह से कितना आदमी का इलाज हो चुका है? सुबह से लगभग यहाँ पे अभी मैंने लेटेस्ट जो एंट्री चेक करी है उसके अकॉर्डिंग 115 पेशेंट्स का एंट्री हो चुका है। मतलब ओवर 100 पेशेंट्स ऑलरेडी हमने देख के स्क्रीन करके ट्रीटमेंट उनको दे दिया है। इसमें यही होता है कि बहुत बार तो क्या होता है कि हम पर्ची पे लिख देते हैं दवाइयाँ क्या है, पर मेडिकेशन होता नहीं है पास में, तो पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता। पर इसमें हम स्क्रीन तो कर ही रहे हैं, साथ में हाइपरटेंसिव भी काफ़ी डायग्नोज करे आज, स्क्रीन एंड ट्रीट साथ चल रहा है, तो मेडिकेशन भी बगल से साथ में ही ले रहे हैं। अभी मोस्ट कॉमन तो बिकॉज अभी कफ कोल्ड है, बिकॉज ठंड का मौसम है और काफ़ी वायरल
ठंड में ग्लोब्यूल्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। तो दैट्स वाई अगर एक घर से कोई आ रहा है तो उसके 5-6 मेंबर्स भी कफ कोल्ड के ही है मोस्ट ऑफ। उसके अलावा मतलब अगर देखें ऐसे 40% तो कफ कोल्ड के हैं, बाकी 10-20% हमने न्यू डायग्नोज करे हाइपरटेंशन के। उसके अलावा यहाँ पे रिंगवर्म काफ़ी कॉमन है, तो रिंगवर्म एंड स्केबीज भी काफ़ी आया जो सर्दियों में और बढ़ जाता है बिकॉज सब लोग मिल के रहते हैं इकट्ठा होके एक जगह पे, तो वो भी आया है। और बाकी फीवर और कफ कोल्ड ही है मेन। उसके अलावा हाँ, यहाँ पे काम करने की वजह से ओल्ड एज के जो पेशेंट उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस ज़्यादा है, तो बैक पेन और ये बहुत है, नी पेन वगैरह, तो उसके लिए जितना हो सके थोड़ा एक्सरसाइज प्लस हड्डी मजबूत वगैरह करने की दवाइयाँ दे रहे हैं। बस एजुकेशन का मैं जितने भी बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो मैं पूछ रही हूँ बहुत सारों को कि कितने तक पढ़े हो, तो ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे एक 18 साल का बच्चा है वो 9 तक पढ़ा, अभी वो गुटखा खा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और ये सारी चीज़ों को हटाया जाए। जो नशा चल रहा है, नशा मुक्ति पे भी हम काम करना चाह रहे हैं, तो वो हटा जाए, तो और प्लस एजुकेशन दी जाए, क्योंकि ये बच्चे ही आगे की जनरेशन है, इन्हीं में हमारा फ्यूचर है। अगर यही सही से नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे होप कर सकते हैं कि और ज़्यादा आसाम की मैं हाइट्स देखना चाहती हूँ कि कितनी पॉसिबल है, कितना हो सकता है। वो तभी पॉसिबल है जब हम इन बच्चों को पढ़ते हुए देखेंगे।